وزیر اعظم پاکستان اگلے مورچوں کا محاذوں کا دورہ کر رہے ہیں اور بھارت کو شکست دینے والی افواج کا حوصلہ بڑھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے کراچی ڈاک یارڈ میں نیوی کے افسروں اور جوانوں سے گزشتہ روز خطاب میں کہا کہ پاکستان نیوی کی بھرپور تیاری سے دشمن کو بحری جارحیت کی ہمت نہ ہوئی۔ بھارت بحری جارحیت کرتا تو مزید رسوائی برداشت کرنا پڑتی۔ کہا پاکستان جارحانہ عزائم نہیں رکھتا، لیکن وطن عزیز کے ایک ایک انچ کا دفاع کرنا اچھی طرح جانتا ہے۔ مشکل وقت میں یکجہتی کا اظہار کرنے والے دوست ممالک کے مشکور ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کا پیامبر قرار دیتے ہوئے کہا وہ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے جنگ کی سلگتی آگ کو بھانپ لیا۔ 1965 میں جو دوارکا کا جو مارکا ہوا تھا، وہاں پر جو آپ نے دشمن کو سبق سکھایا تھا، اسی تیاری کے ساتھ آپ اس مرتبہ بھی تیار تھے کہ دوارکا کی تاریخ کو دوبارہ دہرایا جائے، لیکن دشمن کو ہمت نہیں پڑی۔ ہماری بحری فوج کی تیاری کو دیکھ کر اور جس طرح ان کی پٹائی کی گئی بری فوج کے ہاتھوں اور فضائی فوج کے ہاتھوں، شاید وہ مزید پٹنے کے لیے اور مزید رسوا ہونے کے لیے تیار نہیں تھا۔ امریکہ کے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا نہ کروں کہ انہوں نے یہ جو سلگتی آگ تھی جنگ کی، انہوں نے وقت پر بھاپا، اور دونوں ممالک نیوکلیر ممالک ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹرمپ از اے مین آف پیس، اور انہوں نے امن کی خاطر اور اس خطے میں امن کی خاطر انہوں نے بہت، ان کے ساتھیوں نے، ان کی ٹیم نے بہت اس کے اوپر کام کیا دل جمی کے ساتھ اور صدقے دل کے ساتھ، اور انہوں نے جنگ بندی میں ایک کلیدی کردار ادا کیا۔ اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف نے کراچی پاکستان نیوی ڈاک یارڈ کا دورہ کیا۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر اور چیف آف دا ایئر سٹاف ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو بھی اس موقع پر موجود تھے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے پاک بحریہ کے مستحکم عزم، آپریشنل مہارت اور دشمن کی بحری جارحیت کے خلاف مؤثر دفاعی رد عمل کو سراہا۔ ISPR کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کے کراچی پاکستان نیوی ڈاک یارڈ پہنچنے پر چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے ان کا استقبال کیا۔ وزیر اعظم نے PNS تیمور پر پاکستان فلیٹ کمانڈر سے بریفنگ لی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کو پاک بحریہ کی جنگی تیاری، آپریشن اور حکمت عملی پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ قوم کو اپنی مسلح افواج پر مکمل اعتماد ہے۔ پاک بحریہ نے دشمن کے سمندری خطرات کا بھرپور اور مؤثر جواب دیا۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وزیر دفاع، وزیر منصوبہ بندی، وزیر اطلاعات اور وزیر تعلیم بھی موجود تھے۔ ادھر بھارت آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دے سکا کہ کتنے طیارے گرے تھے۔ بھارت اور پاکستان کے درمیان فائر بندی قطعی طور پر دو طرفہ تھی۔ ٹرمپ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا اور نہ ہی پاکستان نے کسی ایٹمی حملے کا اشارہ دیا تھا۔ یہ بات بھارت کے خارجہ سیکرٹری وکرم مسری نے پارلیمانی کمیٹی کو بریفنگ میں بتائی۔ بھارتی اہلکار نے امریکی صدر ٹرمپ کو بھی جھٹلا دیا۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ دنیا کے مختلف ممالک میں 7 مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جنگ بندی میں کردار انہوں نے ادا کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق پارلیمانی کمیٹی نے وکرم مسری سے بار بار پوچھا کہ پاکستان کے ساتھ جنگ میں کتنے بھارتی طیارے تباہ ہوئے، تو انہوں نے قومی سلامتی کی بنیاد پر جواب دینے سے انکار کر دیا۔ تاہم وزیر خارجہ جے شنکر کے بیان پر صفائی دیتے ہوئے کہا بھارت نے آپریشن سندور کے پہلے مرحلے کے بعد پاکستان کو بتایا تھا کہ صرف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہدف بنایا گیا۔ وکرم مسری نے مزید کہا کہ صدر ٹرمپ نے ہم سے بیچ میں آنے کی اجازت نہیں لی، وہ خود ہی اسٹیج پر آنا چاہتے تھے اور وہ آ گئے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق صدر ٹرمپ کم از کم 7 مرتبہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان فائر بندی کرائی ہے۔ سابق وزیر خارجہ ہنا ربانی کھر نے کہا کہ پاکستان کو بھارت کو بے نقاب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بھارت نے اپنے اقدامات سے خود کو بے نقاب کر دیا۔ اس وقت پاکستان کو بیانیے کی جنگ لڑنے اور کسی کو اپنا بیانیہ سمجھانے کی ضرورت نہیں۔ پاکستان کو دنیا کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ کی سیاست کا
और भारत को छूट देने का इस खत्ते की सलामती पर बहुत खतरनाक असर हुआ है। जेनिक्स के प्रोग्राम आज शाहज़िब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि भारत ने दहशतगर्दी को अपने मफादात की खातिर हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। भारत दुनिया को कह रहा है कि हमें बैनुल अक़वामी कानून और UN चार्टर की धज्जियां उड़ाने दें। हम ना मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं और ना ही तहकीकात पर यकीन रखते हैं। अब जब वो अपना वफ्द भेज रहे हैं, आपका वफ्द क्या पैगाम लेके जा रहा है दुनिया के लिए? पाकिस्तानी देखना चाहिए कि वो अपना वक्त भेजे तो हम अपना वक्त भेजें। आई थिंक हमारे तो वक्त भेजने की इत्तला इससे पहले ही आ गई थी। इस वक्त पाकिस्तान की जंग नैरेटिव की जंग नहीं है। हम कोई किसी को अपना बयानिया समझाने की कोशिश नहीं करें। उन्होंने खित्ते के पीस को वेपनाइज किया, दूसरा उन्होंने टेररिज्म को वेपनाइज किया। टेररिज्म जो कि एक असल मसला है, एक असल प्रॉब्लम है, आप उसको अपने स्ट्रेटेजिक एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करें, नॉट टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम बट टू यूज इट फॉर योर बेनिफिट। इंडिया जिस चीज को दुनिया को कह रही है कि हाँ हमें ये प्रेसिडेंट सेट करने दें और इंटरनेशनल लॉ की धज्जियां उड़ाने दें, UN चार्टर की धज्जियां उड़ाने दें, पूरा एक उन्होंने बनाया हुआ था ना इल्यूजन कि वी कैन गेट अवे विद मर्डर, वो हो गई है अब बर्स्ट। पाकिस्तान को सिर्फ दुनिया को ये समझाने की जरूरत है कि आपके ग्लोबल पॉलिटिक्स का जो हमारी रीजनल सिक्योरिटी में उसका इम्पैक्ट आया है वो बहुत ही खतरनाक है। इस वक्त हमारा बयान है बेस्ड ऑन आवर रियलिटी। वी आर इन ए पोजीशन जहां हम ये बता सकें कि हम पाकिस्तान के प्रेजेंट की बात करें, पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से सीख के आगे जाके प्रॉस्पेरिटी पीस नेगोशिएशन डायलॉग में बिलीव किया। इंडिया का ये कहना कि जी हम तो डायलॉग और नेगोशिएशन में यकीन नहीं करते और हम इन्वेस्टिगेशन में भी यकीन नहीं करते। हम दुनिया को एग्जैक्टली ये कह रहे हैं कि आप जो इंडिया को इम्प्यूनिटी दे रहे हैं उसका हमारे खित्ते के ऊपर बहुत बुरा असर हो रहा है। यहाँ आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर निसार जट ने कहा है कि भारत के साथ कशीदगी के माहौल में हम आर्मी चीफ के साथ खड़े हैं और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी कहते हैं कि डट कर खड़े रहें। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बात करते हुए सेनेटर फैसल वावडा ने कहा ऑपोजिशन ने भारत के साथ कशीदगी में जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि वो ऑपोजिशन के साथ बातचीत का दरवाज़ा खोलें। आज भी सियासतदानों ने अपने आर्मी चीफ के साथ खड़े होकर ये साबित किया कि जमहूरियत आपको ताकतवर बना रही है। इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान की सालमियत के लिए हम आर्मी चीफ को भी थपकी देकर रखेंगे पूरी कि घबराना नहीं है, ठीक है जी, और शहबाज शरीफ को भी कहेंगे कि डट के खड़े जाओ। माजी में कहीं ये ज़ेर बहस बात हुई है कि हम स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ जो है अदम जंग से काफ़ी दिन पहले, काफ़ी अर्सा पहले असद कैसर साहब ने उस वक़्त का हवाला दिया। हमारी पार्लिमानी मीटिंग में इमरान खान साहब की जानिब से कहीं से भी ऐसी कोई बात अभी तक सामने नहीं आई। कि अपोजिशन ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाई है, बड़ी यूनिटी दिखाई है और बहुत खुश आइन और बहुत ज़बरदस्त काम किया। फिर अपॉर्चुनिटी है शहबाज शरीफ साहब के लिए कि वो स्टेट्समैन का किरदार करें, आगे बढ़ें, जैसे कह रहे हैं आगे बढ़ जाएं, बातचीत का दरवाज़ा खोलें, खुद वेलकम करें। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने विफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। विफाकी काबीना का इजलास आज दोपहर 3 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। और सदर ट्रंप इन दिनों दुनिया भर में अमन की कोशिशों में मसरूफ हैं। रूस और यूक्रेन फायरबंदी और जंग के खात्मे के लिए फौरी मुज़ाकरात शुरू करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से 2 घंटे टेलीफोन पर बातचीत के बाद बयान। कहा रूस यूक्रेन मुज़ाकरात वेटिकन में हो तो ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा वेटिकन की मेज़बानी रूस यूक्रेन मुज़ाकरात में मददगार साबित होगी। रूस यूक्रेन मामले में हमारा बड़ा हिस्सा है। रूस जंग के खात्मे के बाद अमेरिका से बड़े पैमाने पर तिजारत करना चाहते हैं। यूक्रेन भी तामीर नौ के अमल में तिजारत से फ़ायदा हासिल कर सकता है। सदर ट्रंप ने कहा उन्होंने यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की, यूरोपीय कमीशन के सदर, फ्रांस, इटली, जर्मनी और फिनलैंड के सरबराहान को भी पुतिन से होने वाली बातचीत से आगाह किया है। कराची में सुपर हाईवे पर जमाली पुल के करीब मुतादिद गोदामों में आग लग गई। फायर ब्रिगेड ने कई घंटे की जिद्दोजहद के बाद आग बुझा दी है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे कमर अली मस्तोई।
सोराब गोड मच्छर कॉलोनी में बड़े रकबे पर फैले हुए मुतअद्दिद गोदामों में आग लग गई है। इस वक्त हमारे कैमरामैन ज़ुबैरुद्दीन आपको दिखाएंगे। ये यहाँ पर इस्तेमाल शुदा अशिया के गोदाम हैं। एक से ज़ायद गोदामों में आग लग गई है। रात गए जो है वो अचानक आग भड़क उठी, जिसके बाद एक गोदाम के बाद दूसरे गोदाम में आग फैलती गई। ये बहुत बड़ा ग्राउंड है जिसमें दर्जनों जो है वो गोदाम बनाए गए हैं। 4 फायर टेंडर इब्तदाई तौर पर यहाँ पर आग बुझाने के लिए पहुँचे। 5 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। 4 फायर टेंडर इस्तेमाल हुए। मुतअद्दिद वाटर टैंकर यहाँ पर पहुँचे, जिनकी मदद से जो है वो मुसलसल आग बुझाने का अमल जारी रहा। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। कूलिंग का अमल इस वक्त भी जारी है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि 5 से ज़ायद घंटे लगे आग बुझाने के अमल में। बहुत शुक्रिया कमर आपका। मुल्तान शहर इन दिनों हीट वेव का शिकार है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत शहर का 44 डिग्री है, तहम गर्मी की शिद्दत 48 डिग्री की महसूस की जा रही है। मज़ीद बताएंगे जौदत नदीम। जी, मुल्तान शहर को हीट वेव ने अपनी ग्रिप में ले लिया है। शहर में अगर दर्जा हरारत की बात करते चलें तो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 31 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। शहर में अगर रियल फील की बात करते चलें तो सुबह 11 से शाम 4 बजे तक जब शदीद गर्मी पड़ रही होती तो 47 से 48 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी जो है वो यहाँ पर महसूस की जा रही होती शहरियों की जानिब से, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से ये भी कहा गया है कि आइंदा चंद रोज़ में गर्मी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा जो है वो रिकॉर्ड किया जाएगा। और शहरियों से भी ये मुतालबा किया जा रहा है कि गर्मी के मौसम में बाहर निकलने से गुरेज करें और इंतहाई ज़रूरी हो तो सरों को ढांप कर बाहर निकलें। जी, कराची में पानी के गलत इस्तेमाल पर 10,000 जुर्माना आयद किया जाएगा। सिटी काउंसिल के इजलास में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की तजवीज़ मंजूर कर ली गई है। शादी हॉल्स, बॉल रूम्स पर टैक्स आयद करने की भी मंजूरी दे दी गई है। पानी की किल्लत और लोड शेडिंग पर अपोजिशन अरकान ने एहतजाज किया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत सिटी काउंसिल का इजलास काफी हंगामा खेज रहा। शहर में पानी की बदतरीन किल्लत, तवील लोड शेडिंग के बावजूद के इलेक्ट्रिक को दी जाने वाली मुख्तलिफ सहूलतें, K4 मंसूबे में ताखीर और पब्लिक पार्क्स में कमर्शियल सरगर्मियों के हवाले से हुकूमती और अपोजिशन अरकान में सख्त जुमलों का तबादला हुआ। यार आप कैन यू प्लीज सेट Please follow some rule and some discipline. इजलास में शादी हॉल्स, बैंक्वेट्स और बॉल रूम्स पर टैक्स आयद करने, नाकारा गाड़ियों और स्क्रैप आइटम्स की नीलामी समेत मुख्तलिफ करारदादें मंजूर की गईं। मेयर कराची ने गाड़ियां धोने, नर्सरियों और कमर्शियल इस्तेमाल में वाटर बोर्ड के पानी के गलत इस्तेमाल पर 5,000 से 20,000 रुपए तक जुर्माने की तजवीज़ दी। अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने मुख्तलिफ मसाइल पर मेयर कराची को तनकीद का निशाना भी बनाया। के इलेक्ट्रिक को एलेंडर रोड पर वाक़े रेलवे क्वार्टर्स की 5,000 से ज़ायद मुरब्बा गज ज़मीन 2,75,000 रुपए फी गज के हिसाब से देने की करारदाद पर भी बहस हुई। इजलास में बल्दिया उज़्मा कराची के अस्पतालों में मुख्तलिफ टेस्टों के चार्जेस में इजाफे की मंजूरी भी दी गई। कैमरा टीम के साथ सुलेमान सादत खान, जियो न्यूज़, कराची। पानी की अहमियत क्या हैदराबाद में भी वैसी ही महसूस की जा रही है जैसी कि महसूस करने की ज़रूरत है, बता रहे हैं अली नई। कार वॉश स्टेशंस पर धुलने वाली इन गाड़ियों पर रोज़ाना की बुनियाद पर हज़ारों लीटर साफ़ पानी खर्च किया जा रहा है। यही नहीं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर, दुकान या काम के मकाम के बाहर छिड़काव करते नजर आएंगे। कार वॉश स्टेशंस के मालकान हों, गाड़ी मालकान या कोई भी आम फर्द पानी की अहमियत से इनकारी नहीं, लेकिन उसके बावजूद पानी का बेदरीग इस्तेमाल जारी है। आपके साथ चल जाता है, फिर भी आते हैं लोग, कार्रवाई करते हैं, बंद करवा जाते हैं, फिर हम बंद कर देते हैं उस हिसाब से। फिर जब पानी की शार्टेज होती है ना, फिर बंद करवा जाते हैं। ये तो गलत है, पानी की जास्ती हो रही है यहाँ पर, मतलब कि हर जगह, और लेकिन हम तो एडजस्ट करते हैं, मिला के आगे पीछे करके चलाते हैं, मगर ये कोशिश करते हैं ज़ाया ना हो पानी, जितना बच सके बचे। पानी की तो बहुत परेशानी है, पीने का पानी भी नहीं है, ये तो अभी मजबूरी, पीने के पानी की ये तो सर्विस है, ये तो ज़ाया पानी है। मेरा तो लोगों को मशवरा है कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं अपनी गाड़ी को जो है सर्विस कराने के लिए लेके आएँ। अदरवाइज़ ये है कि घर पे ही कुछ हल्का फुल्का उसको साफ़ करके कपड़े से, गीले कपड़े से गाड़ी को साफ़ कर।
سندھ میں پانی کے ایشو پر ہمیشہ سے ہی مؤثر انداز میں آوازیں بلند ہوتی رہی ہیں، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ پنجاب کی طرز پر ریسائکلنگ پلانٹ، غیر ضروری پانی کے استعمال کو روکنے اور میٹھے صاف پانی کے استعمال کے لیے قواعد و ضوابط وضع کرنے کے اقدامات اٹھائے جائیں۔ کیمرامین افضل خان کے ساتھ علی نعیم، جیو نیوز، حیدرآباد۔ سرگودا کے نواح میں مخالفین کو جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے لیے بیٹی کے اغوا اور اس سے جنسی زیادتی کا مقدمہ درج کروانے والے باپ کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے ملزم کی بیٹی سے تفتیش کی گئی تو پتہ چلا کہ لڑکی کو نہ تو کسی نے اغوا کیا اور نہ ہی زیادتی کی گئی۔ پولیس نے لڑکی کے والد کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی ہے۔ سرگودا کے نواحی گاؤں چک 29 جنوبی کے رہائشی یاسین نے 12 فروری کو تھانہ کڑانا میں مقدمہ درج کراتے ہوئے الزام لگایا کہ اس کی 18 سالہ بیٹی کو 3 افراد نے اغوا کر کے زیادتی کا نشانہ بنایا۔ پولیس نے یاسین اور اس کی بیٹی کے بیان پر 3 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مرکزی ملزم کو گرفتار کیا۔ لڑکی کا میڈیکل کرا کے DNA ٹیسٹ کے لیے لاہور لیبارٹری کو بھجوا دیا گیا تھا، جس کی رپورٹ آنا باقی تھی۔ پولیس نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے واقعے کی تمام پہلوؤں سے تفتیش کی تو پتہ چلا کہ یاسین نے مخالفین کو بیٹی کے اغوا اور زیادتی کے جھوٹے مقدمے میں پھنسانے کے لیے سارا ڈرامہ رچایا۔ لڑکی نے بتایا کہ اسے نہ تو کسی نے اغوا کیا اور نہ ہی زیادتی کی۔ پولیس نے یاسین کو گرفتار کر کے اس کے خلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے۔ اور اب کھیلوں کی خبریں شامل کرتے ہیں۔ HPL PSL ٹیل اب اپنی اختتامی مراحل میں ہے۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے کراچی کنگز کو 79 رن سے ہرا کر دوسری پوزیشن حاصل کر لی۔ راولپنڈی میں کراچی کنگز نے اسلام آباد یونائٹڈ کے خلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ اوپنر ایلکس ہیلز اور صاحبزادہ فرحان نے ٹیم کو شاندار آغاز فراہم کیا۔ دونوں نے پہلی وکٹ پر 153 رنز کی شراکت لگائی۔ صاحبزادہ فرحان 41 گیندوں پر 9 چوکوں اور 3 چھکوں کی مدد سے 73 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، تو ایلکس ہیلز نے صرف 35 گیندوں پر 8 چھکے اور 6 چوکے لگا کر 88 رنز بنائے۔ شاداب خان 42 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اسلام آباد یونائٹڈ نے 5 وکٹ پر 251 رنز اسکور کیے۔ جواب میں ٹم سائفرڈ اور ڈیوڈ وارنر نے 56 رنز کا آغاز فراہم کیا۔ سائفرڈ 26 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ انفارم جیمز ونس کو اماد وسیم نے آؤٹ کیا، وہ 8 رنز بنا سکے۔ سعد بیگ 5 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ کپتان ڈیوڈ وارنر کے 43 کے انفرادی اسکور پر آؤٹ ہونے کے بعد کراچی کنگز نے ہمت ہار دی۔ بڑے ہدف کے تعاقب میں کنگز کی وکٹیں وقفے سے گرتی گئیں۔ 114 پر 8 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے۔ پھر محمد عباس اور عامر جمال نے کچھ مزاحمت کی۔ عباس 34 اور عامر جمال 16 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے۔ پوری ٹیم 172 رنز بنا سکی۔ شاداب خان نے 4 اور اماد وسیم نے 2 وکٹیں حاصل کیں۔ اس فتح کے بعد اسلام آباد یونائٹڈ کوالیفائر 1 میں ٹاپ ٹیم کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مد مقابل ہوگی۔ تیسرے نمبر پر موجود کراچی کنگز ایلیمینیٹر میں لاہور قلندرز کا مقابلہ کرے گی۔ برطانیہ کے سابق فٹ بال کپتان اور برطانوی نشریاتی ادارے پر فٹ بال شو کے میزبان گیری لینیکر کو یہود مخالف سوشل میڈیا پوسٹ پر اپنی نوکری سے ہاتھ دھونا پڑ گیا۔ وہ اس سیزن کے اختتام پر ادارے سے علیحدہ ہو جائیں گے۔ 64 سالہ گیری لینیکر انگلینڈ کے سابق فٹ بال کپتان اور دور حاضر کے ٹاپ فٹ بال پریزنٹر میں سے ایک ہیں۔ گزشتہ دنوں انہوں نے سوشل میڈیا پر فلسطینی حمایتی گروپ کی ایک ایسی پوسٹ شیئر کی جس پر چوہے کی تصویر بھی بنی ہوئی تھی، جو تاریخی طور پر یہود مخالف عکس تصور کیا جاتا ہے۔ گو کہ گیری لینیکر نے اپنی پوسٹ پر معافی مانگ لی، تاہم مختلف تنظیموں کی جانب سے انہیں اور ان کے ادارے کو شدید تنقید کا سامنا رہا، جس کے بعد ادارے کے سب سے زیادہ معاوضہ لینے والے اینکر نے اس سیزن کے اختتام پر ادارے سے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ گیری لینیکر ماضی میں بھی برطانوی حکومت کی پالیسی پر تنقید کے بعد کچھ دیر کے لیے آف ایئر ہوئے تھے۔ پاکستان کے سابق اسکواش کھلاڑی زبیر جہان خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں اسکواش کا بہت ٹیلنٹ ہے، لیکن کھلاڑیوں کو سہولتیں اور وسائل دستیاب نہیں۔ ٹیلنٹ بھرا ہوا یہاں پہ، ان کی فیسلٹیز نہیں ہے۔ اب کورٹ وغیرہ یہ ہزارہ کلب ہے، باقی ادھر جو دوسرا کلب ہے وہ سیشن کینٹر میں ہے، تو اچھی بات ہے کھیل رہے ہیں، مگر وہ چیز جو ہے جو ہماری ٹائم پہ تھا اس طرح نہیں ہے۔ ان کے پاس وسائل ابھی یہ ہیں کہ بہت ہی کم ہے۔ ابھی بچے ہم نے کل وابڈا CEO نے اناؤنس کیا ہے ٹیم بنانے کے لیے، وہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ ہم نے لڑکیوں کی ٹیم اور لڑکوں کی ٹیم بنائی ہے جنہیں میں خود لنڈن اوپن کراتا ہوں 18 سال سے، اباؤٹ $60,000۔ تو میں یہاں پہ بھی سیٹلائٹ جو چھوٹا سا سیٹلائٹ PSA انٹرنیشنل ٹورنامنٹ افتتاحی میں شروع کروں گا دسمبر مڈ میں۔ تو انشاءاللہ قسیم اور ہم لگے ہوئے ہیں، تو جیسے ہمیں اور رسپانس ملے گا ہم اس کو بڑا کریں گے کہ باہر سے بھی بہت لوگ آئے اور اپنے بچوں کو فروغ ملے۔ اور یہ ایک مطلب
मुझे नहीं सिर्फ सोचना चाहिए, यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, हम सिर्फ क्रिकेट के पीछे लगे हैं, क्रिकेट के पीछे, मगर जो पाकिस्तान में स्क्वाश में जो काम किए 35 साल हम वर्ल्ड चैम्पियन रहे हैं, वो तो हमें भूलना नहीं चाहिए। अमेरिका में सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा कि पाकिस्तान की IT बरामदात 3 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं, जिनमें 70% हिस्सा अमेरिका से मुतालिक है। पाकिस्तान अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने सफ़ीर पाकिस्तान के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया। सफ़ीर पाकिस्तान ने कहा 2024 में पाक अमरीका तजारत का हजम 7.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था और पाकिस्तान की अमरीका को बरामदात इसकी आलमी तरसील का तकरीबन 20% हैं। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख से लॉस एंजलिस में सीडर सिनाई इंटरनेशनल के वफ़द ने भी मुलाकात की, जिसमें सेहत के शोबे में ताउन बढ़ाने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया गया। रिजवान सईद शेख ने डेटारॉक्स के नुमाइंदगान से भी मुलाकात की। तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर बातचीत की गई। सफ़ीर पाकिस्तान मुख्तलिफ शोबे जात से मुताल्लिक़ा ताजरों और बिज़नेस कम्युनिटी से भी मिले, जिसमें तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी के तबादले पर बात की गई। सफ़ीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख की ज़ेर सदारत पाक एम टेक कौंसिल का इजलास भी हुआ। रिजवान सईद शेख ने बताया कि पाकिस्तान की IT बरामदात 3 अरब अमरीकी डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं, जिसमें 70% हिस्सा अमरीका से मुताल्लिक़ है। सफ़ीर पाकिस्तान ने कैलिफोर्निया के सेनेटर बाब आर्चुलिटा से भी मुलाकात की, जिसमें 2 तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात पर तबादला ख्याल किया गया। सफ़ीर ने फ्रेंड ऑफ पाकिस्तान के ज़ेर एहतमाम यौम तशक्कुर की तक़रीब में भी शिरकत की। तक़रीब में कैलिफोर्निया और नोएडा भर से बड़ी तादाद में पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी के अफराद ने शिरकत की। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सूफिया कुरैशी के खिलाफ गंदे और शर्मनाक बयान देने पर बीजेपी के वजीर विजय शाह की माजरत ये कहकर मुस्तरद कर दी कि ये कैसी मुआफ़ी है, ये दिल से नहीं की गई, पूरा मुल्क विजय शाह के घटिया बयान पर शर्मिंदा है। अदालत ने कहा कि लोग कानून से बचने के लिए झूठी मुआफ़ी मांगते हैं मगर मच के आंसू बहाते हैं, इसलिए अदालत को मुआफ़ी नहीं चाहिए, इस केस से कानून के मुताबिक निपटा जाएगा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कमज़ोर FIR काटने पर मध्य प्रदेश पुलिस को भी आड़े हाथों लिया और नई खुसूसी इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने का हुक्म दिया है। कहा है कि टीम में शामिल तीनों सीनियर अफसरान मध्य प्रदेश के बाहर से हों और उनमें एक खातून अफसर का होना लाजिम है। अदालत ने मुलज़िम विजय शाह की गिरफ्तारी रोकने की दरख्वास्त पर इस शर्त पर स्टे दिया कि वह तफ्तीश में मुकम्मल तावन करे और ये कि सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस की तफ्तीश पर गहरी नज़र रखे। पाकिस्तान से सीज़ फायर के बाद बीजेपी के वजीर विजय शाह ने भारतीय फ़ौज की तर्जुमानी करने वाली कर्नल सूफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दिया था। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप को बेहद सराहा है और कहा है कि खुद सदर ट्रंप से ज़्यादा रूस मेलानिया ट्रंप का एहतराम करता है। मेलानिया ट्रंप स्लोवेनिया में पैदा हुई थी, जो माजी में यूगोस्लाविया का हिस्सा था। सदर ट्रंप ने खातून अव्वल से मुताल्लिक़ बात व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब करते हुए कही। ये तकरीब टेक इट डाउन एक्ट पर दस्तखत के लिए मुनक़्क़िद की गई, जिसका ख्याल मेलानिया ट्रंप ने पेश किया है। ये एक्ट फ़ोहश तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया से हटाने से मुताल्लिक़ है। पेशावर म्यूजियम में दिलकश ईरानी आर्ट की नुमाइश हुई, जहां कदीम रिवायती और जदीद फन पारे शहरियों की तवज्जो का मरकज़ बन गए। तफसील देखिए उज़ैर खलील की रिपोर्ट में। पेशावर म्यूजियम में सजी ईरानी आर्ट की नुमाइश कांच से बनी अशिया पर ईरानी फ़न की बारीक कारीगरी और खूबसूरती ने शहरियों को मुतवज्जा किया। चमकते रंगों से सजी कदीम अशिया खूबसूरत ईरानी आर्ट की नुमाइंदगी कर रही थी। This is our duty to show our new generation the many things that we have in common, especially in values, in culture, in civilization. नुमाइश में नफासत और बारीकी से बनी जदीद पेंटिंग्स के साथ साथ खुशनवीसी के खूबसूरत और नायाब नमूने भी रखे गए थे। मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने पेशावर अजायब घर में तारीखी और नायाब मालूमात हासिल की। बहुत मुख्तलिफ चीज़ें हैं कल्चर के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में, और फर्स्ट टाइम मैं इधर आई हूँ, बहुत अच्छा महसूस हुआ। यहाँ पे ईरानी गेस्ट आए थे, उन्होंने हमें बहुत गाइड किया, बहुत समझाया, बहुत अच्छे से समझाया। खाना फरंग ईरान के ताउन से मुनक्कदा 3 रोज़ा नुमाइश में ईरान के कदीम और जदीद आर्ट की बेहतरीन अंदाज में अक्कासी की गई। कैमरामैन तारिक अली के साथ उज़ैर खलील, जियो न्यूज़, पेशावर।